Yes, friends. So, welcome back. I hope everyone is here. So, Harsh, till now, what we have done, we completed that levered, unlevered beta concept. So, which was left yesterday. And then we have completed one more reading, which is related to sources of fund. Okay. So, now this is your reading number 27. So, that is related to corporate governance. So again, you will find that it is totally theoretical basically. So different kind of things, terminologies will come. So what is corporate governance? If we say, so as the name says, it refers to we are just, yes, can you come again? Yes, rules and regulations framed by the corporate Yes, to yes. So it means we can say internal controls and procedures of a company that tells the rights and responsibilities of various groups, how to tackle the conflict of interest among different groups. So all that is corporate governance. All that is corporate governance. So if we talk about corporate governance, what is happening? We are talking about internal controls, procedures, so that what happens actually the business runs smoothly. So that is corporate governance. Now, so there are different people in a corporate shareholder. So we know they are the owners. So after paying to all the outside liabilities whatsoever is left, so we call it as residual. So it means shareholders have the residual interest. तो बाहर की जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको पे करने के बाद जो भी कुछ बचा है वो किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है. So they have claim over the net assets. What do we mean by net assets? It means assets after liabilities settled. And shareholders have voting rights. Shareholders have voting rights. Yes. Now there are board of directors. So these board of directors have a responsibility to protect the interest of the shareholders. So for example, there are lakhs of shareholders of a company. तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जाएगा और हर कोई कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनसे बात करेगा, उनसे पूछेगा क्या है क्या नहीं, आप हमारे लिए क्या काम कर रहे हो. So board of directors are appointed so that they take care of the interest of the shareholders. Board of director में even the management of the company is involved. Sometime it happens. So even sometime what happens, the CEO becomes the chair of the board of director. So it is a kind of, we can say, a sign of not good corporate governance. So they should be different from the management. अगर मैनेजमेंट के लोग ही उसमें बैठे हुए हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली जो इनका पर्पस है कि हमें शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, अगर मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना. तो होना नहीं चाहिए लेकिन होते हैं. So there are senior managers. So who they are? They typically are employees. They receive compensation. So जिसमें सैलरी होती है, बोनस होता है based on the company's performance, perquisites होते हैं. एम्प्लॉइज है, व्हाट एम्प्लॉइज थिंक ऑफ, उनका इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी सस्टेनेबल बनी रहे, कंपनी बंद ना हो जल्दी से. Then we have creditors. So we know creditors. Who are the creditors? So to whom company have to make the payment. So we can say they are a kind of primary owner, primary. So वो कौन है? वो सबसे पहले लोग हैं जो फर्म को a kind of loan देते हैं. We have suppliers. So we have different suppliers of resources. तो उनका क्या इंटरेस्ट होता है? उनका इंटरेस्ट होता है कि कंपनी के साथ हमारा रिलेशनशिप बना रहे. रिलेशनशिप बना रहेगा तो कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे. तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं. Now there can be conflict of interest also. So first, what is principal agent relationship?
So it refers to owners employing agents to act in their interest. So the owners are actually appointing a kind of agents to act in the interest, their interest. So there might be a possibility that these agents have different conflict, have different, इनका जो mindset है ये अलग तरीके से सोचना शुरू कर दे, ओनर्स अलग तरीके से सोचना शुरू कर दे. So for example, if we talk about the management is a kind of agent to the shareholders. Shareholders management को appoint करते हैं कि management इस तरीके से काम करे ताकि ultimately shareholders की worth बढ़े, shares की value बढ़े, shareholders की worth बढ़े. So हो सकता है कि मैनेजमेंट के लोगों का इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है और उनके जो अगर हम बात करते हैं इंसेंटिव्स, दे आर नॉट अलाइंड विद देम. अगर वो कंपनी की परफॉर्मेंस से अलाइन नहीं है तो वो कहेंगे इतना तो हम काम करते हैं और हमें कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा कुछ मिल नहीं रहा है, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Okay, now there can be conflict of interest between shareholders and managers. अभी डिस्कस किया. So there can be conflict of interest between different shareholders groups also. So for example, in a company there are different shareholder groups. So they can have they can have conflict of interest. So conflict of interest can be there between the creditors and the shareholders. So owners, if we talk about, and the creditors. So for example, shareholders say that okay, give us the dividend, as much dividend as much possible. Creditors or those people who have provided the loan, they might say no, don't distribute dividend very much dividend, because if you distribute very much dividend then reserves and surplus will be less, and in future there might be a possibility कि आप हमें पैसा टाइम पर नहीं दे रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. अगेन शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो जैसे हमने पढ़ा शेयर होल्डर्स का इन सब के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है शेयर होल्डर्स का. सो देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो फिर तो शेयर होल्डर्स के बीच में भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, मेजॉरिटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. हाँ, तो ये तो है ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स डिफरेंट, तो डिफरेंट ग्रुप बन गए हैं, उन शेयर होल्डर्स के बीच में डेफिनेटली डिस्प्यूट है. Now, so what is stakeholder management? As the name says, we are managing the stakeholders. So it refers to management of company's relation with different stakeholders, so that ultimately there is a smooth running of the business and everyone is benefited. तो सभी stakeholders के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, उनकी बातों को सुनना, उनके साथ गुड अंडरस्टैंडिंग होना, तो यही स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का पार्ट है. Then so different mechanisms to manage stakeholder relationship. So we can have legal infrastructure. So this legal infrastructure, what happens there? We identify the laws relevant and legal recourse of stakeholders when their rights are violated. तो जो different stakeholders हैं, उनके पास क्या-क्या rights हैं, अगर उनके इंटरेस्ट को वायलेट किया जाता है, उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है, तो क्या-क्या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन वो ले सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं. कॉन्फिडेंस आएगा ना अगर इन चीजों की बात करेंगे. कॉन्ट्रेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कि अल्टीमेटली आपके राइट्स ये हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं,
तो अगर हम इस तरीके से पूरा प्रॉपर सब कुछ राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखकर चलेंगे तो प्रॉब्लम कम होगी ना। तो हमने वो सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया। हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने सिस्टम्स, प्रोसेस की अगर बात करते हैं वो सेट कर दिए, डिसाइड कर दिए कि ठीक है इनको इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, अगर इनके साथ बात नहीं बनती है तो इनको फिर इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रॉपरली बना दिया। फिर गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मींस हमने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उनको किस तरीके से केटर किया जाए। So we can have these kind of different infrastructure. So if we have these kind of different infrastructure, there is a great possibility कि हमारे stakeholders के साथ relationships अच्छे रहेंगे। Now there can be different kind of things. So there can be annual general meetings. So it means every year company has to conduct a general meeting, AGM. There can be extraordinary general meetings. So sometime what happens, there is a, we can say a kind of किस तरीके की सिचुएशन आ गई है, नॉर्मल एबनॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई है और उसके अंदर कुछ अप्रूवल चाहिए स्टेक होल्डर से, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल किया गया। प्रॉक्सी, इट मींस वन पर्सन इज गिविंग राइट टू द अनदर पर्सन। तो एक पर्सन के पास वोटिंग राइट है, वो दूसरे पर्सन को अपने वोटिंग राइट दे रहा है और कह रहा है कि आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके की हम बात कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट, यस, सो कहां पर थे हम? यस, प्रॉक्सी हो गया था। मेजॉरिटी वोटिंग, मेजॉरिटी वोटिंग। So what do we mean by majority voting? As the name says, majority. So for example, there are 21 votes. So definitely इसका मतलब 11 वोट्स अगर एक तरफ पड़ जाएंगी तो जिस डिसीजन के ऊपर 11 वोट्स आई हैं, so that decision will be taken. तो इसका मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात होती है कि जिधर की तरफ ज्यादा वोट पड़ेंगी, दैट डिसीजन विल बी फाइनल। Then cumulative voting concept is also there. What do we mean by cumulative voting concept? So it is basically to prevent, we can say to give more right to the minority stakeholder. तो मान लीजिए हमें क्या करना है, एक इन्वेस्टर को 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करने हैं। they have to give the voting. So एक शेयर होल्डर को क्या मिला? एक शेयर होल्डर को 11 वोट्स मिली, 11 वोट्स। इट मींस अ शेयर होल्डर कैन कास्ट 11 वोट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग? ये शेयर होल्डर अपनी 11 टू 11 की 11 वोट्स किसी एक जने को भी दे सकता है। ये शेयर होल्डर अपनी 11 की 11 वोट्स किसी एक कैंडिडेट को भी दे सकता है। तो इससे हुआ क्या, जिसके पास कम शेयर्स हैं उसके पास भी पावर ज्यादा आ गई ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर उस शेयर होल्डर को सब 11 वोट्स डालनी है, मान लीजिए 50 कैंडिडेट खड़े हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, लेकिन 11 वोट डालनी है और 11 की 11 अलग अलग को डालनी है, तो जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनकी बहुत डिस्पर्स हो जाएगी। जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो अल्टीमेटली जिस जगह वोट डालेंगे वही बात बन जाएगी। बट इस तरीके से क्या होता है, जो छोटे शेयर होल्डर्स है जिनका माइनॉरिटी स्टेक है, वो भी एक ही जने पर 11 पिक करने थे लोग, तो एक ही जने को 11 की 11 वोट्स दे सकते हैं, तो उनकी भी जो वोटिंग राइट है, वोटिंग पावर है, वो बढ़ जाती है। दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव वोटिंग। I hope this point is clear. So let me see. Please try these 3 questions. Is it correct? The first one is wrong. चिन्मय एंड शनय, आपका?
Yes. the theory that deals with conflict of interest between a company's owners and its creditors is most appropriately called. तो अभी अभी तो हमने देखा था, अगर ओनर्स के बीच में और स्टेक होल्डर्स जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, हाँ, शेयर होल्डर्स का किसी और के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे स्टेक होल्डर थ्योरी बोलते हैं, अभी अभी तो देखा था हमने. सो दैट इज आंसर इज स्टेक होल्डर. स्ट्रक्चर थ्योरी हमने कुछ नहीं पढ़ा. हर्ष, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हर्ष. डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ जी, सर डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके ओके, इज इट फाइन? बी है इसका, क्योंकि कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उसको हम स्टेक होल्डर थ्योरी बोलते हैं. Now there are certain duties of board of directors as well. Okay, there are certain duties of board of director. As the name says, who are the board of directors? Board of directors are those people who take care of the interest of the shareholders. So they are what? They are board of directors. So let we see. So board of directors select the senior management, setting their compensation, evaluating their performance. So these are the duties of board of directors. Setting the strategic direction. Then if any capital structure changes are to be made, so they approve it. So when there are significant acquisitions, so they approve it. When company has to do large investment expenditure, they approve it. They review the company's performance, and if any action has to be taken, necessary corrective steps has to be taken, so they implement it. So they plan for the continuity of management. They plan for the succession of CEO, so who is to be replaced. They actually establish, monitor, oversee the firm's internal control and risk management system. So they ensure that the company is providing quality reporting. Company is doing quality reporting. It means they are not hiding anything from the shareholders. So these are the duties of board of directors. Now there can be different committees. So board of directors we have seen, so there are different committees which can be created, and they have different roles, as the name says. So if we talk about audit committee, so their main task is to look at the financial reporting, whether the company is giving quality financial, company is doing quality financial reporting or not. They look at the accounting policies, external audit, internal audit. So that is the task of audit committee. Then if we talk about the corporate governance, so as the name says, so corporate governance, whether they see whether the company is fulfilling its corporate governance liabilities or not, whether the company is following code of ethics or not, whether company is following rules and regulations or not. So that is the purpose of this governance committee. Nominations committee. So ultimately, if we talk about this nomination committee, they proposed. So for example, if we talk about the higher management, so this committee proposed that who can be selected for CEO, CFO, that kind of thing. So they talk up, they do the complete thing. अगर वोटिंग होनी है तो कैसे वोटिंग होनी है, इलेक्शन होना है तो कैसे होना है, तो पूरा का पूरा जो बोर्ड है, बोर्ड का कंपोजिशन कैसा हो नहीं हो, तो ये सब कुछ कौन डिसाइड करते हैं, ये इसका काम है. कंपनसेशन कमेटी नाम से पता चल रहा है. सो दे रिकमेंड्स टू द बोर्ड द अमाउंट. इसका मतलब क्या कंपनसेशन होना चाहिए, कैसा कैसा कंपनसेशन होना चाहिए, एम्प्लॉइज के क्या बेनिफिट प्लान्स होने चाहिए. सो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग दिस कंपनसेशन कमिटी टेल्स. Then we have risk committee, so it is related to risk management. So whatsoever are the firm wide risks,
So how to manage them, how to control them, how to take insurance on them, so all that kind of thing is the work of risk committee. Investment committee, so if any investment decisions are to be taken, so for example acquisitions, mergers, large expenditure, investment expenditure, sale of assets, so all that kind of things if we talk about, so this is the work of investment committee. I hope this is fine. Now there are some more points. Yes. So for example, CEO duality. So some more terminologies we are talking about. So as the name says, CEO duality. So what do we mean by CEO duality? CEO itself becomes the chairman of the board of directors. So when we talk about CEO, CEO is a part of management, and that CEO also becomes the chairman of the board of directors. So there is a conflict of interest. So what happens? It decrease the protection to shareholder interest. देखिए अगर मैनेजमेंट का बंदा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बन जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, तो पूरा का पूरा जो ये बोर्ड है ये वही डिसीजंस लेगा जो मैनेजमेंट चाहती है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट कम प्रोटेक्ट होंगे। सो इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर देन it favors the CEO favors management of the company, not the shareholder interest. Now there is a thing called two-tier board structure. So what happens? There are two type of boards now. One is executive boards, executive member board, and one is non-executive member board. सो जो मैनेजमेंट का बोर्ड बना हुआ है, जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने अपना बोर्ड बना रखा है। जो मैनेजमेंट के जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने जो अपना बोर्ड बना रखा है, उसके ऊपर एक और बोर्ड है और उसमें सब कौन है? उसमें कंपनी की मैनेजमेंट का कोई भी नहीं है। सो वी कॉल दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एज टू-tier board structure. We call it as two-tier board structure. Now there is a staggered board. What do we mean by this? It limits the ability of shareholders to replace the board members in any 1 year and is used less now than it has been historically. So let I give you an example what happens in this staggered board. So for example, the board of members are chosen for different time period. So आज की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनका टाइम पीरियड 1 साल में एक्सपायर हो रहा है, जिनका टर्म 1 ईयर में एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे, मान लीजिए 33% मेंबर्स ऐसे होंगे जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर में खत्म हो जाएगा, जिनका टर्म। कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनका टाइम पीरियड 2 ईयर्स में जाके खत्म होगा और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिनका टाइम पीरियड 3 ईयर्स में जाकर खत्म होगा। तो कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं आएगा, मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर है, वो कहता है हमें पूरे के पूरे मैनेजमेंट, हम पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही बदल देंगे सभी को, तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जिसकी टर्म बची हुई है वो तो अपना पूरा करेगा। अगर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही टाइम पीरियड के लिए चूज हो, फिर क्या होगा? फिर ये प्रॉब्लम है कि एक ग्रुप ने अल्टीमेटली फोर्स किया और सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो गए, लेकिन जिसका जितना टर्म है वो तो अपना टर्म पूरा करके ही जाएगा। तो मान लीजिए 1 साल खत्म हो गया, वो ग्रुप चाहता है कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे के सारे चेंज करने हैं, तो 33% कोई तो रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई चाहता है कि हम पूरी की पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर दे, बोर्ड मेंबर्स को चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं होता। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड बोर्ड। Is this point clear? Shanay, Chinmay, Harsh, is it fine? Yes, sir. Yes, sir. Now we have
In a good corporate governance, the audit, governance and remuneration committees should be composed entirely of independent of board members. So अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो जो कमिटीज बन रही है, अलग अलग कमिटीज बन रही है, तो ऑडिट कमेटी बन रही है, गवर्नेंस कमेटी बन रही है, रेम्यूनरेशन कमेटी बन रही है, तो इनमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स का अगर हम बात करते हैं, इसमें जो मेंबर्स होंगे वो कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स नहीं होने चाहिए। जो भी ये कमिटीज बन रही हैं, इसके अंदर जो लोग हो वो कौन हो? वो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। इसका मतलब कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ना हो। अगर मैनेजमेंट के लोग होंगे, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहां पर फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज फाइन। Now, please, can you try these 3 questions? Yes, sir. Done, everyone? Please. Is it correct? So third one wrong. Sixth Third one. Sixth one. The board of directors committee most likely to be responsible for monitoring the performance of a project that so जो large capital expenditures की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी काम है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो कौन देखता है? वो इन्वेस्टमेंट कमेटी तो देखेगी। ऑडिट कमेटी तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, फाइनेंस जो रिपोर्टिंग है उन सबको देखेगी। रिस्क कमेटी पूरे के पूरे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को देखेगी कि वेदर द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज प्रॉपरली प्लेस्ड और नॉट, क्या क्या रिस्क है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजें तो इन्वेस्टमेंट कमेटी तो देखेगी। Yes, sir. So now again, so we have to describe market and non-market factors that can affect stakeholder relationship and corporate governance. So let me see. So you can see these are simply several capital market factors can affect corporate governance and stakeholder relationships. Factors can affect stakeholder relationships and corporate governance include communication and engagement with shareholders. It means what is happening with the shareholders, there is a communication. Shareholder activism, it means if we talk about the shareholder, different shareholders, now what they are doing, they just want something, some participation in the management. तो ये सब लोग क्या हो गए हैं, छोटे छोटे ग्रुप में थे जो वो कह रहे हैं कि नहीं हमें इस मैनेजमेंट को हटाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उससे क्या होगा? पूरे के पूरे कंपनी के ऊपर इफेक्ट आता है। There might be a threat of hostile takeover. Hostile का मतलब ये कि जो कंपनी की अभी मैनेजमेंट है और जो कंपनी के अभी लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, दे डू नॉट वांट कि हाँ भाई कोई और आकर इस कंपनी को एज इट इज एक्वायर कर ले। लेकिन बाहर एक ग्रुप है जो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, धीरे धीरे शेयर्स भी खरीद रहा है और धीरे धीरे करके क्या होगा, वो कोशिश कर रहा है कि हम क्या कर लें, इस कंपनी के ऊपर कब्जा कर लें। तो इस तरीके की चीजें होंगी तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स कुछ एंटी टेक ओवर प्रोविजंस भी रखती है कि ताकि हमारी कंपनी टेक ओवर ना हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लगता है कि कोई कंपनी जबरदस्ती हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग छोटी मछली है, ये बड़ी मछली है, तो हम एक दूसरी मछली के पास चले जाते हैं, दूसरे एक बड़े बड़े लोगों के पास चले जाते हैं, उनसे कहते हैं आप आके खरीद लो, हमें इनको नहीं बेचना, आपको बेच देंगे हम। तो जब वो इनको बेच देंगे तो अल्टीमेटली ये बिड से फिर बाहर हो जाता है। कंपनी का लीगल एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत ज्यादा अगर हम बात करते हैं लीगल बहुत ज्यादा है तो फिर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
Okay, so these are the different kind of things. So nothing as such. Now, good corporate governance. If there is a good corporate governance, then it can improve operational efficiency. It reduce default risk. It reduce cost of debt, improve financial performance, increase firm value. If all these things happen, so automatically what will happen? Firm's value will increase. So this is this. So if we talk about good corporate governance, so these are the benefits. And if there is a poor governance, then reverse of all these will happen. Reverse of all this will happen. Yes. So you can see that is weak control system, poor decision making, legal risk, reputational risk, default risk. So all these problems comes if there is a poor governance. Is it fine? Please. Yes, sir. Now, so you can just read. You can read it. It is already been discussed. So ultimately, पढ़ लीजिए एक बार. So देखना शुरू करते हैं. How can we do the analysis whether there is a good corporate governance or not? So first is ownership and voting rights. ड्यूअल क्लास स्ट्रक्चर. देखिए इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो जनरली क्या होता है? If we talk about equity, it means all the equity shareholders have equal rights. But US की बात करते हैं, so it means there are 3 different shareholders and there are 3 different classes of equity. It means for example, जो ये वाले शेयर्स हैं इनको सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स मिले, इनको थोड़े कम वोटिंग राइट्स मिले और इनको बिल्कुल भी नहीं मिले. इसका मतलब प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन बराबर है, तीनों का रेजिडुअल क्लेम है, लेकिन वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो एक को ज्यादा मिल रहे हैं, एक को कम मिल रहे हैं. तो इस तरीके के अगर ड्यूअल क्लास स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसका मतलब वो गुड गवर्नेंस नहीं है. बोर्ड कॉम्पोजिशन. If there are sufficient number of independent directors and their experience is also very rich, so it means it is very good. Management remuneration. If we अगर हम मैनेजमेंट के रेम्यूनरेशन को किससे टाई अप कर देते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड कर देते हैं, तो ये भी अच्छी चीज रहती है. Then composition of shareholders. There is a thing called cross shareholding. तो इसमें क्या है, इस कंसेप्ट के अंदर कि मैनेजमेंट बोलती है कि भाई देखो हम कंपनी के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आए, तो एक ग्रुप होता है शेयर होल्डर्स का, वो कहता है कि आप चलिए हम इसको अप्रूव करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं, कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको बैक करेंगे, कल को कोई भी वोटिंग होगी तो हम आपको बैक करेंगे, आपके फेवर में वोटिंग करेंगे. तो इससे क्या होता है, इससे अल्टीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ टेक ओवर डिफेंस ऑल्सो. अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है, डिसीजन कुछ खराब भी हो जाता है और कोई तीसरा जना बैठा था कि अल्टीमेटली वो कहता है कि देखो इस मैनेजमेंट ने गलती कर दी है, इस मैनेजमेंट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब इस मैनेजमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं, अपने लोग भेजेंगे, हम टेक ओवर कर लेंगे. तो क्योंकि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस मैनेजमेंट को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं, ओनर्स प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो टेक ओवर नहीं हो पाता है. सो इट वर्क्स एज अ टेक ओवर डिफेंस. Okay, so these are the different factors. Nowadays, there is a concept called ESG, environmental social governance.
So when we take investment decisions, we also consider this ESG component. So there are many issues. So harm or potential harm to the environment. So what we check कि जो भी ये बिजनेस है इससे कोई एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा, जो वर्क फोर्स है उसकी डेमोग्राफी में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, एनवायरमेंटल एक्सीडेंट होंगे, अगर एनवायरमेंटल एक्सीडेंट्स होंगे तो बिजनेस को कितना नुकसान पहुंच सकता है, अगर करप्शन होता है, ह्यूमन प्रैक्टिसेस रॉन्ग होती हैं तो उससे रेपुटेशन पर कितना नुकसान होगा। तो इस तरीके के फैक्टर्स को भी हम कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। So we are looking at these factors also before doing the investment. So these are basically, so these are the issues. तो इसमें हम ESG में क्या क्या करते हैं उन चीजों को देख रहे हैं। Now there are, when we do investment analysis, हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से चीजों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव स्क्रीनिंग, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं कहता हूं कि मुझे ऐसी कंपनीज नहीं रखनी है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने पोर्टफोलियो में सिगरेट वाली इंडस्ट्रीज को नहीं रखूंगा, हटा, भले ही उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन उनको हटा दो। सो दैट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव स्क्रीनिंग। अगर हम चीजों को हटाते हैं तो दैट इज नेगेटिव स्क्रीनिंग। पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इट मींस हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो ESG, पॉजिटिव ESG प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, ऐसी कंपनीज जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। सो लेट वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ कंपनीज। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि हम उन्हीं कंपनीज को अल्टीमेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे जो कस्टमर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे। Impact investing, it means investing to promote social environmental goals which still make profitable investments. तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी कंपनीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रॉफिटेबल तो है ही, प्रॉफिटेबल के साथ साथ वो क्या कर रही है, सोशल वर्क भी अच्छा कर रही है, एनवायरमेंट के लिए भी काम कर रही है। तो इस तरीके की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ग्रीन फाइनेंस, सो इसका मतलब ऐसी कंपनीज को ढूंढने की बात कर रहे हैं जो सस्टेनेबल है, प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव्ड इन मोर सस्टेनेबल वे। तो ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब सस्टेनेबल वे में ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन कम फैला रही है, एमिशंस कम कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके की कंपनीज को हम ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन फाइनेंसिंग, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन फाइनेंसिंग। देयर कैन बी थीमेटिक फाइनेंसिंग, इट मींस थीम बेस्ड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, आई एम सेटिंग अ थीम कि जो इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मुझे उस तरीके की थीम में इन्वेस्टिंग करनी है। तो मैं इंडिया की ग्रोथ में फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग सेक्टर है, इस तरीके के 3-4 सेक्टर्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ के अंदर सपोर्ट करते हैं। सो आई विल इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ कंपनीज, सो दैट आर बेसिकली थीमेटिक बेस्ड इन्वेस्टिंग। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस। Yes, sir. Shanay and Chinmay, is it done? सर फर्स्ट वाला नहीं है, बाकी सेकंड और थर्ड तो है। So which of the following statements concerning corporate takeovers is most accurate? Staggered board elections are considered, तो ये हमने देखा था। Staggered की अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज हैपनिंग, हाँ जी, क्या होता है स्टैगर्ड के अंदर, बांट दिया है हमने, तो एक ही टाइम पर सब हर कोई क्या नहीं कर सकता,
पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकता. सो इट इज अ काइंड ऑफ एंटी टेक ओवर मेजर. सो इट मीन्स दिस इज करेक्ट. सेकंड और थर्ड की बात करते हैं. आर दे करेक्ट? So third वाला wrong हो गया. Executive compensation and bonuses are most likely consistent with the interest of shareholder if they are aligned with the company strategy. तो लॉजिकली देखिए कि शेयर होल्डर्स, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनका कंपनसेशन डिसाइड कर देंगे तो शेयर होल्डर्स भी यही चाहते हैं. शेयर होल्डर्स भी यही चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका कंपनसेशन कंपनी की परफॉर्मेंस पर हो. अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो अच्छा कंपनसेशन मिल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कंपनी की स्ट्रेटेजी के बेस पर अगर उनका कंपनसेशन डिसाइड कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, दोनों में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम है.